Hello everyone, welcome you all in today's session. Today we are going to study a very important topic that is DNA, chromatin and chromosome. देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट नंबर सेकंड. यूनिट नंबर सेकंड इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन और सेकंड यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, सेकंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड वन इज इवोल्यूशन. तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, पहले हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. तो देखिए इस चैप्टर में आपको करना क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना है. इसमें आपको पढ़ना है अबाउट हेरिडिटी, जो इनहेरिटेंस, दैट व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, अबाउट मैंडल्स वर्क. जो मैंडल हैं वो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं. तो मैंडल के बारे में और मैंडल के वर्क के बारे में, दैट व्हाट मैंडल डिड, एंड अबाउट द मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड प्रोसेस which were performed by Mendel on the pea plant. तो pea plant पे जो उन्होंने inheritance का pattern study किया था, तो how he studied and what were the results of that experiment, this we have to study. After that जो Mendel ने अपने inheritance की study से कुछ laws दिए थे, जिसमें आपको Mendelian laws के नाम से जिसको जानते हैं, तो Mendels के laws पढ़ने हैं. After that आपको Mendels के experiment की कुछ limitations, कुछ drawbacks, जिसमें आपको कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये फिनोमिनन पढ़ने हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर. तो देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको मैंडल्स के वर्क के बारे में पढ़ना है, उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस विद यू डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम. तो देखिए चैप्टर हम जो है, चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो बाद में करेंगे. But before that, I want to tell you, I want to make you understand a topic, DNA, chromatin and chromosomes. आप अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं about DNA, that DNA is the genetic material, deoxyribonucleic acid is the genetic material that is present in the center or in the nucleus of the cell, and this DNA is the blueprint of the life. And also you have studied about chromosomes, that chromosomes are the rod-like structures and which are 23 in pair, or in 46 chromosomes are present in each and every cell of the human being. And so now, but even then most of the students are confused about DNA, chromatin and chromosome. So in this session I will be focusing on the difference between DNA, chromatin and chromosome. तो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक. तो देखिए फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन डीएनए. डीएनए क्या है? देखिए इस यूनिट के सेकंड चैप्टर में आपको मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी पढ़ना है कि केमिकली जो डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, जो भी उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, दैट यू विल स्टडी इन द सेकंड चैप्टर ऑफ द यूनिट सेकंड. एंड टुडे व्हाट यू हैव टू स्टडी अबाउट डीएनए. You can say that DNA is the thread-like structure present in the cells of the every living organism. तो एक बार आप ये देख के चलें कि आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, देयर आर 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से दैट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो यू नो व्हाट आर प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cells. Prokaryotic cells are the cells which do not contain any well-defined nucleus and all the cellular contents are scattered in the cell. जिसमें कोई well-defined nucleus नहीं होता, that is called prokaryotic cell. And the DNA क्या है? DNA you can say that thread-like structure. DNA is a very long thread-like structure present in the cell, and as you know that in eukaryotic cell DNA is located in the nucleus, but in prokaryotic cell there is no well-defined nucleus, so DNA is present in the, or it's scattered in the cytoplasm, and single molecule of DNA is present in the cytoplasm of the prokaryotic
cell. But when we talk about eukaryotic cell like this is a eukaryotic cell. So in case of eukaryotic cell, a very long DNA molecule is located in the nucleus of the cell. यानी कि जो डीएनए के लिए एक अलग से रूम है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. तो दिस वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस. And so you can say that DNA is simply the thread-like structure which is present in the nucleus of the eukaryotic cell and the cytoplasm of the prokaryotic cell. So I am telling you again that the molecular structure of DNA we will study later, but now you have to see that DNA is simply the thread-like structure present in the nucleus of the cell. So when this DNA is present in the thread-like form, एक thread-like form में है, then this is called DNA, deoxyribonucleic acid. So we will be talking about only eukaryotic cell, that in which the DNA is present in the nucleus. If we talk about DNA, तो अगर हम एक ह्यूमन सेल का ही लेके चलते हैं, अगर हम ह्यूमन सेल के डीएनए की बात करते हैं, तो द साइज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लॉन्ग. कि अगर हम डीएनए को अगर खोल के देखते हैं, इसको थोड़ा सुलझा के देखते हैं, तो इट इज लगभग 6 फीट लॉन्ग. ये लगभग 6 फीट लॉन्ग है. तो इतना बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल है, इट कांट बी फिट इन द वेरी टाइनी साइज्ड सेल. आपको पता है सेल का साइज इतना छोटा था कि सेल इज माइक्रोस्कोपिक, और फिर माइक्रोस्कोपिक सेल का न्यूक्लियस उससे भी छोटा है. तो इतना बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल जो है, इट कांट बी फिट इन द सेंटर और न्यूक्लियस ऑफ द सेल. तो टू गेट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दिस डीएनए बिकम्स कंडेंस्ड. ये जो डीएनए है, दिस डीएनए कंबाइंड with a special class of proteins, and these proteins are called histone proteins. So this DNA combines with the histone proteins to become condensed. ये condense हो जाएगा and will get the small size. So how it get combines with histone proteins? So here we need to understand we need to study about the histone proteins. तो if DNA जो है, that is deoxyribonucleic acid, means it is of acidic nature. और जब आप डीएनए का मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इट कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज. इट इज नेगेटिवली चार्ज. तो जो डीएनए है, दैट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर एंड इट कंबाइंस विद हिस्टोन प्रोटीन्स. तो what are these histone proteins? देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, these histone proteins are somewhat basic in nature. हिस्टोन प्रोटीन्स हैं क्या? हिस्टोन प्रोटीन्स are the specialized proteins with which the DNA combines or to become compact. ये compact हो जाएगा. तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, 4 types of histone proteins are present in the compact form of the DNA. तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स हैं which get combines with DNA? ये हैं H2A, H2B, H3 and H4. तो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं? 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स. ये उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से हैं कि H2A, H2B, H3 and H4. These are the histone proteins which combine with the DNA to make it condensed. Condensed हो जाएगा, compact हो जाएगा. तो देखिए होता क्या है, how these histone proteins are combined with DNA. देखिए 2 molecules of each histone proteins combine to form the octamer. कि जो H2A है, H2A
2 molecules of H2, 2 molecules of H2A, 2 molecules of H2B, 2 molecules of H3 and 2 molecules of H4 combine to form the 8 molecular structure, and these 8 molecules of histone proteins combine to form the octamer. इसी तरह से बहुत सारे octamer जो हैं वो प्रेजेंट हैं, like this is 2 molecules of H2A, H2B, H3 and H4. इसी तरह से यहां पर H2A, H2B, H3 and H4. तो इस तरह से बहुत सारे ऑक्टामर जो हैं these are present in the condensed form of DNA. तो इसी तरह से क्या होगा आगे, अगर मैं थोड़ा और बना के दिखाऊं तो इस तरीके से बहुत सारे जो ऑक्टामर्स हैं वो प्रेजेंट हैं. तो ऑक्टामर है क्या? ऑक्टामर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स in which every 2 molecules of every kind of histone proteins are present. तो अब जो ये ऑक्टामर बने हैं, तो हाउ दिस DNA is combining with it. तो कैसे जो ये, अगर मैं एक बार ब्लैक पेन से आपको मैंने ऑक्टामर बना के दिखाए हैं, अगर मैं DNA को रेड पेन से दिखा रही हूं तो क्या होता है कि इस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो वाइंड होता है. और आगे फिर कैसे, इस तरीके से जो डीएनए है दैट इज रैप्ड अराउंड द ऑक्टामर्स. कि ऑक्टामर्स आर प्रेजेंट एंड डीएनए इज रैप्ड अराउंड द ऑक्टामर्स. तो अगर यहां पे फिर क्या होगा, एक ऑक्टामर, देन दिस इज ऑक्टामर. तो इस तरह से ऑक्टामर्स आर प्रेजेंट एंड द डीएनए इज रैप्ड अराउंड द ऑक्टामर्स. एंड व्हेन इट इज रैप्ड अराउंड द ऑक्टामर्स इट बिकम्स कंडेंस्ड, because I tell you that DNA is acidic in nature and histone proteins are basic in nature. So when this DNA is wrapped around the histone proteins, it becomes condensed. तो अगर हम DNA की बात करते हैं कि what is DNA, तो DNA is the thread-like structure present in the nucleus of the cell. But when this DNA wrapped around the histone proteins या octamers of histone, then it can get condensed, and this condensed form of DNA is called chromatin. This is now called as chromatin. So I hope you got it that what is DNA and what is chromatin. DNA is simply a thread-like structure, but chromatin क्या है कि when the DNA get wrapped around the octamers to जो है become condensed. तो देखिए अभी कुछ हद तक कंडेंस हुआ है, पूरा कंडेंस नहीं है, इसको आप सेमी कंडेंसेशन बोल सकते हैं. तो अब क्या होगा, व्हेन दिस, उससे पहले टर्म देखिए कि जो ये ऑक्टामर है, दिस ऑक्टामर एंड दिस रैप्ड डीएनए, दिस स्ट्रक्चर, दिस यूनिट, इतनी सी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम. This structure is called as nucleosome. न्यूक्लियोसोम. इस तरह से जो ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल, ऑक्टामर का मॉलिक्यूल है, और इस ऑक्टामर के अराउंड ये डीएनए रैप्ड है, इस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम. ये न्यूक्लियोसोम. तो पॉलीन्यूक्लियोसोम्स, मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट. तो ये देखिए जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज सेमी कंडेंसेशन, ये सेमी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. तो इस सेमी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन विच द डीएनए इज रैप्ड अराउंड द ऑक्टामर्स ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमेटिन. इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन. आफ्टर दैट क्या होगा,
जब ये स्ट्रक्चर और भी कंडेंस हो जाएगी, मतलब ये और भी कंडेंस हो जाएंगे। देखिए अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट लाइक this. These are the DNA and these are the octamers. ऑक्टामर्स को मैं एक बार ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर रही हूं। दीज आर द ऑक्टामर्स। तो अब इस तरीके से बहुत लॉन्ग, अभी भी काफी लॉन्ग जो क्रोमेटिन बना है, दिस क्रोमेटिन विल फर्दर गेट कंडेंस्ड। ये क्रोमेटिन और कंडेंस्ड होगा। कैसे? ये और भी जब कंडेंस्ड होगा कि जो न्यूक्लियोसोम आपस में जब क्लोज आएंगे तो और भी कंडेंस्ड हो जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज कंप्लीटली अ फुली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जब ये और भी पास आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये इस तरह से रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। एंड दिस रोड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कंप्लीटली और फुली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। डीएनए है दैट इज सिंपली द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज डीएनए इज वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल, it cannot get fit in the nucleus of the very tiny cells. So this DNA get condensed by combining with a special class of proteins called histone proteins, and when it combines or get wrapped around the histone proteins, it become condensed, semi-condensed, and this semi-condensed form of DNA is called chromatin. And when this semi-condensed, this structure further condensed and or more condensed to form the compact structure या complete fully condensed form, this form is called chromosome. तो जो अगर आप क्रोमोसोम की बात करते हैं तो आप क्रोमोसोम को इस तरह से डिफाइन देख सकते हैं कि क्रोमोसोम इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप शेप में देखेंगे तो आपको ऐसा एक रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। लेकिन देखिए अगर आप डीएनए को एक थ्रेड लाइक फॉर्म में देखते हैं तो आपको एक थ्रेड ही दिखता है। बट जब ये कंडेंस्ड होता है, कंडेंस्ड होके ये क्या करता है, इस तरह से 46 स्ट्रक्चर बना लेता है। एंड दीज 46 स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड 46 क्रोमोसोम्स, और यू कैन से दैट 23 पेयर्स, बट पेयर्स वी विल टॉक लेटर। तो इस तरह से 46 स्ट्रक्चर्स बना लेता है जिसे आप क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। So you simply say that 46 chromosomes are present in a simple eukaryotic, मतलब simple human cell. So this is about DNA, chromatin and chromosome. One more thing that you need to understand, आपने +1 क्लास में सेल साइकिल के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने जब सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा है, जिसमें आप G1, S एंड G2 फेज के बारे में, आफ्टर दैट आप माइटोसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द स्टेजेस, दैट व्हाट इज द टाइम व्हेन द डीएनए रिमेन्स इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हेन इट रिमेन्स इन द क्रोमेटिन फॉर्म, एंड व्हेन इट कंबाइंस और कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम। तो अगर आप सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो एक एस फेज आता है, इंटरफेज में एस फेज आता है, जिसका मतलब है सिंथेटिक फेज, in which the DNA doubles, DNA get replicated, DNA का amount double हो जाता है। That process is called DNA replication, that we will study in the second chapter. तो DNA replication क्या है? DNA replication is the process of duplication और doubling of the DNA. तो जब DNA को डबल होना है या रेप्लिकेट होना है तो then it has to get open, इसको अनवाइंड होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। तो जब क्रोमोसोम है वो ओपन होगा, देन इट विल फॉर्म द क्रोमेटिन, और फिर जब फर्दर क्रोमेटिन भी ओपन होगा देन इट फॉर्म द डीएनए। तो आप इतना एक याद रख सकते हैं एक बार कि जो 96% जो टाइम है इन द सेल, 96% टाइम जो डीएनए है दैट रिमेन इन द अनवाइंड फॉर्म और इन द डीएनए फॉर्म, बट फॉर 4% ऑफ टाइम, जो 4% टाइम जो है, दैट इट रिमेन्स इन द कंडेंस्ड फॉर्म।
तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। तो एक आपने टर्म सुना है जीन। जीन क्या होता है कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए और पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। कोई भी डीएनए का ऐसा, अगर मैं डीएनए पर ये बना रही हूं, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो डीएनए का कोई भी एक सेगमेंट जो कोई ना कोई प्रोटीन बना रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए है, डीएनए इज कन्वर्टेड या डीएनए इज ट्रांसक्राइब टू फॉर्म आरएनए एंड आरएनए इज ट्रांसलेटेड टू फॉर्म प्रोटीन्स एंड पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कोड्स फॉर स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर। तो अगर हम बात करते हैं कि जीन की, जीन क्या है, अबाउट जीन वी विल स्टडी लेटर, बट एक बार सुने कि जीन क्या है। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, ये विच कोड्स फॉर ए प्रोटीन, जो कोई भी प्रोटीन बनाता है, दैट इज कॉल्ड जीन। तो जब जीन अब डीएनए के ऊपर लोकेट कर रही हूं तो जीन ऐसा दिखाई दे रहा है कि डीएनए का छोटा सा पार्ट है, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, छोटा सा पार्ट है। बट व्हेन द डीएनए बिकम कंडेंस्ड, तो सपोज कीजिए इतना सा पार्ट, ये वो जीन वाला पार्ट है, सपोज कीजिए जीन है इतना सा, तो यहां पर जीन ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये क्रोमेटिन भी आगे फर्दर कंडेंस होगा तो इट विल फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो आप क्रोमोसोम के ऊपर जीन कैसे दिखाएंगे? आप बोलेंगे कि पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड विच कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड जीन। तो देखिए जीन क्या है, जीन इज सिंपली ए पार्ट ऑफ डीएनए, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल ए कैरेक्टर विच कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। कोई प्रोटीन बनाता है, दैट इज कॉल्ड जीन। तो डीएनए के ऊपर अगर मैं जीन दिखा रही हूं तो वो ये है, पोजीशन तो इसकी यही रहेगी। तो क्रोमेटिन जब बनाएगा तो मैंने इसको, इस पोज कीजिए, ये वाला पोर्शन यहां पर आ गया तो इसको जीन बोल दिया। अब इसी यही फॉर्म अगर जो क्रोमेटिन है वो और कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है तो क्रोमोसोम के ऊपर मैंने इस तरह से लोकेट कर दिया। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। सिंपली बात एक ही है कि डीएनए और क्रोमोसोम, क्रोमेटिन सब एक ही चीज है कि डीएनए इज अ थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर। व्हेन दिस थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर कंबाइंड विद हिस्टोन प्रोटीन्स इट फॉर्म क्रोमेटिन एंड व्हेन इट फर्दर जो कंडेंस्ड फर्दर become condensed or become compact form, then it is called as chromosome. So this is all about DNA, chromatin and chromosome. In the next lecture, we will continue with heredity, inheritance and about the Mendel work. Thank you.